Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So let's get started with today's partnership final accounts problem. Okay, मेरे बगल में पीयूष है, अरुण है, और उनके बीच का रेशो भला चंगा है 1:1. ओके, कौन है? लेट्स रीड द क्वेश्चन, पता चल जाएगा. सो हियर गोस. अबाउट सेज, मैं मेरे उस कांटे को लेके आता हूँ. सो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष and Mr. Arun. So now obviously these are the partners. You are required to prepare trading profit and loss account and the balance sheet. The date is 31st March 2019. So accordingly, quickly to just remind you that above, trading account for the year ended 31st March 2019, ये मेरे पीछे का अकाउंट 12 महीनों के लिए 12 मंथ्स का बनता है. तो उसके अंदर जो भी है वो सब 12 महीनों का होता है. ओके, नेक्स्ट, मेरे पीछे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. ये दिमाग का अकाउंट है. ये आफ्टर प्रोडक्शन की कहानी आपको रिकॉर्ड करके दिखाता है. ये ऑफिस है. इसमें भी 31 मार्च 2019. ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई अलग अलग टीम नहीं है. इंडिया, न्यूजीलैंड, वर्ल्ड कप फाइनल, नो. ओके, सेम टीम है, तो ईयर एंडेड सेम होता है. एंड लास्टली, दिस इज द डेकोरेशन पार्ट, बट वेरी इंपॉर्टेंट डेकोरेशन. द बैलेंस शीट इज ऑल्सो एज ऑन 31st March 2019. अबाउट दैट पार्टनर्स अकाउंट में पीयूष, अरुण. ओके, देर आर गोइंग टू बी one to working notes which I will give it to you when the time arrives. जब समय सही होगा तब तक के लिए आप इंतज़ार करना, आज के ही लेक्चर में होगा, बट जब आएगा लिख लेना. सो above, well, behind me is the trial balance and also 1 2 3 4 5 adjustments. अब ये जो एडजस्टमेंट्स है ये किसके साथ जुड़े हुए हैं वो देख लेते हैं. दीज आर मार्किंग्स: ट्रेडिंग, P&L, पार्टनर्स कैपिटल, एसेट लाइबिलिटी. लास्ट का स्टार है, वो जब एडजस्टमेंट आएगा तो बता दूंगा. सो द फर्स्ट थिंग, आई विल अगेन डू माई बेस्ट टू कीप this
कर्सर, ओके। स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। परचेसेस इज ऑल्सो ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरीज इज ऑफिस वाले का पगार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोग, यू गाइस कैन ऑलवेज डू वन थिंग, जब क्वेश्चन पीछे आता है आप पॉज कर लो, आप आपके माइंड में यू गो थ्रू ऑल द मार्किंग्स, चेक वेदर यू नो इट और नॉट। इफ यू डोंट नो, प्रॉब्लम नहीं, आफ्टर 5 मिनट्स व्हेन यू सी पता तो चल ही जाएगा, बट एटलीस्ट यू विल कम टू नो आपको कितना अब तक समझा है। नेक्स्ट, वेजेस इज ट्रेडिंग। कैरेज एक्चुअली डुअल है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड इज ट्रेडिंग, outward is profit and loss, because we don't know ना, सिर्फ कैरेज बोला है पीछे उन्होंने, so we consider it to be carriage inward। माल रॉ मटेरियल लेकर ट्रक आ रहा है, क्यों? अगर देखो रॉ मटेरियल आएगा ही नहीं तो प्रोडक्शन कैसे होगा, आगे की गाड़ी कैसे जाएगी? तो द इम्पॉर्टेंट वन in carriage inward and carriage outward is carriage inward। तो we consider, हम समझते हैं जो कैरेज दिया है वो कैरेज इनवर्ड है। सो ट्रेडिंग अकाउंट की मार्किंग। रॉयल्टी आई हैव वंस और ट्वाइस एक्सप्लेन्ड, और पहले भी मैंने बोला है, कोई महाराजा महारानी का चीज़ नहीं है। रॉयल्टी इज बेसिकली अ पेमेंट, खर्चा, पेमेंट। अगर आप दूसरे किसी का कोई नॉट इन्वेंशन बट दूसरे किसी के आपने गाना, आपने धुन, म्यूज़िक, ट्यून, लिरिक्स, आपने डिज़ाइन, तो इफ़ यू टेक, मतलब मैन्युफैक्चर तो मैंने किया बट कहानी उसकी थी, हाँ, तो उसको पैसे तो देने पड़ेंगे ना तुमको, हाँ, तो आप रॉयल्टी देते हो। सो वो रॉयल्टी प्रोडक्शन के पहले होता है, ओके। मूवी की जो शूटिंग है ना, वो होने के पहले ही रॉयल्टी देना पड़ता है। सो इट इज ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेट, रेलवे से हमारा सामान जब आता है, रॉ मटेरियल, ओके, तो वो आप रेलवे फ्रेट, यू कैन कॉल इट लाइक दैट, एंड देयरफॉर यू कैन कॉल इट अ ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, printing and stationery, printing, xeroxing, pen, pencil, ruler, rubber, these things are used in an office, therefore marking will be of office. Profit and loss. Debtor asset, furniture asset, leasehold property. You see, property is not a पंगा, everybody understands. So property मतलब जगह, जायदाद, okay, which is good, मेरा है, मेरे नाना का है, नानी का है, ओके, एसेट। बट ये लीज होल्ड क्या होता है? लीज का मतलब लंबा रेंट। वो थोड़ा टाइम लग गया बोलने के लिए, आई जस्ट हैड टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दैट वर्ड, लॉन्ग रेंट। नॉर्मली अगर आप कोई चीज़ रेंट पे लेते हो, 1 महीना 2 महीना, अगर घर ले तो नॉर्मली वो 11 मंथ्स का अग्रीमेंट होता है, 11 मंथ्स, ओके। बट व्हेन आपने कोई गोदाउन, कोई दुकान, ओके, कि मैं तो कहाँ पे जाने वाला हूँ ही नहीं, मेरे को ये आप दे दो 9 सालों के लिए, 19 ईयर्स के लिए, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, ओके, तब तक मैं आपको भाड़ा देता रहूँगा, मैं यहाँ पे छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जो लैंडलॉर्ड है वो भी खुश, बोलेगा अच्छा है यार, टेनेंट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हर 11 महीने में नया नया अग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स अ लॉन्ग, सो यू कैन यूज़ दैट प्लेस, ओके, मे बी होटल के लिए यूज़ कर सकते हो, मे बी कोई दुकान के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन यूज़ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तब तक अपना समझ के आप रख सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स नथिंग बट लीज होल्ड premises or property, okay. There are many government properties, like in the city of Bombay, okay, the municipality owns in Bombay many open areas, okay, and many properties, but
द म्युनिसिपैलिटी इज नॉट यूजिंग इट, क्योंकि उनको अभी ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट डू? दे गिव इट टू समबडी एल्स ऑन व्हाट? लीज होल्ड. लीज, लंबा रेंट, कि आप ले लो, ये 10 साल के लिए यूज़ करो, 15 साल के लिए यूज़ करो, 20 साल के लिए यूज़ करो, एंड फिर देखेगी 20 साल के बाद क्या करना है. सो दैट लीज होल्ड प्रॉपर्टी मीन्स वो प्रॉपर्टी है, अपना समझ के आप रखो, क्योंकि 11 महीने में आपको ये लौटाने की ज़रूरत नहीं है. इट्स एन एसेट, वेरी सिंपल. इन्वेस्टमेंट एसेट हमेशा की तरह. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन का ट्रैवलिंग होगा, मैनेजर का ट्रैवलिंग होगा, चपरासी का ट्रैवलिंग होगा, ऑफिस के साथ कनेक्टेड, इसके लिए P&L. एडवर्टाइजमेंट इज प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज इट इज प्लान्ड आफ्टर प्रोडक्शन. प्रोडक्ट बनने के बाद में प्लान होता है ना, बट जो ब्रैकेट में दिया है ना, फॉर 3 years, अभी ये फॉर 3 years मतलब कुछ तो गड़बड़ है, हिडन एडजस्टमेंट. अच्छा, तो उसको स्टार मार्क. नेक्स्ट, बैड डेट. वी हैव अ फॉर्मूला BANO, उसके अंदर B स्टैंड्स फॉर बैड डेट, P&L अकाउंट. डिस्काउंट अलाउड, दिमाग का काम, दिमाग का काम, सिर का काम. ऑफिस, P&L. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. देखो भाई, कैश किधर भी रखो, ऊपर का पॉकेट, नीचे का पॉकेट, पीछे का पॉकेट, कोई भी जगह पे रखो, इट इज ऑलवेज एन एसेट. एंड लास्टली, फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट कहाँ पे शुरू होता है? बैंक में. इफ योर मम्मी पापा नाना नानी, ओके, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा था, एक्स्ट्रा, वो लोगों को घर चलाने के लिए अभी ज़रूरत नहीं है, सो दे कीप इट इन द बैंक. फिक्स डिपॉजिट, थोड़ा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, थोड़ा ज़्यादा मिलता है, थोड़ा ज़्यादा. तो बेसिकली एसेट है, हमारा पैसा. इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में, आई थिंक सो, अगर मुझे बराबर से याद है तो लास्ट लेक्चर में डिपॉजिट पे चर्चा हुई थी, डिस्कशन. व्हाट इज डिपॉजिट? मेरा पैसा, मैंने उधर दिया, उसको दिया. अच्छा, दान दक्षिणा गया? नहीं 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 नहीं, मैंने 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, फिर वापस आएगा. रिसीवेबल, तो एसेट है. अच्छा भाई, एसेट हो गया, तो द डेबिट लिस्ट तो खत्म हो गया. अभी जो क्रेडिट लिस्ट है ना, उसको देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, इट्स कनेक्टेड टू पार्टनर्स, तो पार्टनर्स कैपिटल. देन क्रेडिटर. ये क्रेडिटर कौन है? ये वो भाई साहब है जिसको हमको पैसे देने, वी हैव प्रॉमिस टू पे. तो हमारे घर के लिए जो दूध वाला भैया होता है, जो न्यूज़पेपर वाला अंकल होता है, उनको वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं. तो ऐसे दुकान के लिए क्रेडिटर होता है. लाइबिलिटी, हाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट क्या था? मेरा पैसा, मैंने बैंक में डाला. क्यों डाला? दया धर्म? बिल्कुल नहीं, मेरे को इंटरेस्ट कमाना है. सो वेरी सिंपल, वेन एवर यू और एनीवन अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया, बैंक में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया, बदली में कुछ मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट, दैट इज एन इनकम. दिमाग का काम, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट 2%, 5%, 6%. सो देयरफॉर द मार्किंग इज प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये इनकम है. बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट लोन होता है. एंड सेल्स इज ट्रेडिंग अकाउंट. ऑल ऑफ दिस इज द ट्रायल बैलेंस. इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट है. इफ यू रीड द फर्स्ट पॉइंट अबाउ एडजस्टमेंट्स, स्टॉक ऑन हैंड on 31st March 2019 was cost price 40,000 and market price 35,000. ये कौन सा स्टॉक है? देखो, 2 स्टॉक होते हैं, एक ओपनिंग सुबह का, एक क्लोजिंग. सो बिकॉज ये 31st मार्च है, ये क्लोजिंग है. पहले बात तो दैट्स टू बी नॉट डिस्कस्ड एज सच. पॉइंट नंबर 1 में देयर इज क्लोजिंग स्टॉक. But there are 2 values, 40,000, 35,000. रूल, कानून,
मैं नहीं, नॉट स्टीवन सर, नॉट एनी बिग प्रोफेसर ऑन यूट्यूब और अ सीनियर प्रोफेसर इन द कॉलेज, नहीं, द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक मिनट सर, आपने क्या इतना लंबा बोल दिया? देखो भाई, पूरे भारत देश में अगर अकाउंट्स ओके लिखा जाता है तो उसके कुछ कानून होते हैं। आप गाड़ी चलाते हो, कानून होता है, यस, लेफ्ट में रहना है, राइट में रहना है, वन वे है, टू वे है, सिग्नल है, उसका भी तो कानून है। इट इज द सेम फॉर एवरीवन। सिमिलरली अबाउट क्लोजिंग स्टॉक देयर इज अ कानून, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो कानून क्या बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो आपके दुकान के अंदर का सामान है, बाहर का नहीं है, दुकान के अंदर का, वो हमेशा कम वाले लोअर वैल्यू पे लिखो। ओके, तो 40,000 है, 35,000 है, तो कम वाला वैल्यू 35,000 हो गया, 40,000 को इग्नोर करो। Okay, so 35,000 is what we will consider. So let's go ahead. Point number 2. Interest on fixed deposit is still receivable. कितना? 1200. मतलब अरे आपने आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाला तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना. सम पीपल विल से बट सर यू कैन सी इट इज रिटन हियर इंटरेस्ट received on fixed deposit. But now you read, what does point number 2 say? Receivable. Two different words. Received मतलब received, जेब में आ गया, past tense. Receivable मतलब जेब में नहीं आया, अरे मंडे को आएगा, नहीं ट्यूसडे को आएगा, नहीं वेडनेसडे को आएगा, अरे फ्यूचर में आएगा. क्यों? क्योंकि थोड़ा टाइम लग गया उन लोग को पैसा देने के लिए. Receivable is always an asset, always, because it is connected to, ये जो पॉइंट नंबर 2 है उसका रिश्ता, घनिष्ठ रिश्ता किसके साथ है? दो चीजों के साथ. क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट पे है, आपको फिक्स डिपॉजिट को एक स्टार करना पड़ेगा, तो वो वहां पे आया. एंड आपको इंटरेस्ट जो क्रेडिट साइड पे है, तो इफ यू कैन सी interest received on fixed deposit. So it's connected to these two. Point number 2, adjustment number 2, connected to fixed deposit, क्योंकि वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है. ओके, सो प्लीज नोट, इट इज नॉट कनेक्टेड टू इन्वेस्टमेंट. जो कहा उन्होंने कहा कि स्पेसिफिकली ये फिक्स डिपॉजिट नामक पे आपको मिला है, तो हमने एक फिक्स डिपॉजिट को मार्क किया और एक इंटरेस्ट जो क्रेडिट में है. पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइड आरडीडी. कौन सा आरडीडी? व्हाट इज आरडीडी? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. डाउटफुल, डाउट, शक है. किस पे शक है? अरे कस्टमर्स पे शक होता है और किसी पे होता नहीं. टेबल, चेयर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, नहीं उस पर क्या शक करने का, बट कस्टमर पे डेफिनेटली हमको शक है. क्या? कितने का? 2.5%. क्या डाउट है? अरे वो हमारा पैसा लेके चंपत हो जाएगा, भाग जाएगा. तो what do you create? I create an RDD. A shopkeeper who has अक्ल always will be proactive. मतलब वो पहले से ही तैयारी करके रखेगा कि चलो मैं तो रिजर्व बना देता हूँ, मेरे को तेरा भरोसा नहीं है. हाँ, क्योंकि मैं एकदम एंड वक्त पे, एंड मोमेंट पे, इफ यू रन अवे, आई डोंट हैव टाइम टू रन बिहाइंड यू. नो नो, आई हैव सच अ बिग शॉप टू टेक केयर ऑफ. मैं मेरा दुकान, करोड़ों का दुकान संभालू कि तेरे पीछे 1-2 हज़ार के लिए भाग के जाओ. सो दुकानदार लोग वो नहीं करते, उन लोग आरडीडी क्रिएट करते हैं. फॉर दैट यू हैव टू पुट अ स्टार फॉर डेटर्स. सो दैट्स व्हाट आई डिड. पॉइंट नंबर 4, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 5%. तो कर लो डेप्रीशिएट, फर्नीचर को मार्क कर लो. एंड पॉइंट नंबर 6, सॉरी, that was point number 4. This is point number 5. Goods of just about 8,000. Okay, so don't worry, I'm not doing hands up, but just showing you 8,000 destroyed by fire. Not a very good news. अच्छी खबर नहीं है. आग लग गई, 8,000 के गुड्स को आग लग गई. ओके, आगे. एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000 only. What is this? देखिए, इस पे थोड़ी चर्चा हम करेंगे. We'll discuss this when I come to point number 5. 5.
राइट नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड, स्टार मार्क करने का जरूरत नहीं है. Let me come to point number 5. It's the very last part in the problem and I will discuss this with images. It's always good ना, डायग्राम थोड़ा मैं ड्राइंग करूँ, थोड़े पिक्चर्स दिखाऊँ, तो थोड़े नहीं ज़्यादा भेजे में जाता है. राइट नाउ जल्दी जल्दी, इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन. हाँ, एक दो पॉइंट्स नए हैं तो वो मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ. स्टॉक 3800, तो किधर गया स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 3800. नेक्स्ट परचेसेस 80,000, इनर कॉलम 80,000. टेक्स्ट बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, परचेसेस के आगे सैलरीज लिखा है. इफ आई एम नॉट, मैं गलती नहीं कर रहा तो थोड़ा गलत प्रिंट किया है. सैलरीज इज 5,000, P&L डेबिट साइड, तो वो आ गया. ओके, एक साथ में वर्ड नंबर एक साथ में. वेजेस 7,500, ट्रेडिंग में दे, अगेन वर्ड एंड नंबर ओके टुगेदर. कैरेज 3,000, कौन सा कैरेज, इनवर्ड. किसने कहा, किसने बोला नहीं, वो हमने सोचा कि जो इनवर्ड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके आउटवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, तो इनवर्ड हमने सोचा और लिखा. रॉयल्टी 2,500, तो वो प्रोडक्शन के पहले ही देना पड़ता है, वरना तो हमको म्यूज़िक ही नहीं मिलेगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं मिलेगा, हमको स्टोरी नहीं मिलेगी, हमको गाना नहीं मिलेगा. फिर फ्रेट 700, ये रेलवे से माल लाने का खर्चा, अगर वो नहीं आएगा, रेलवे किधर अटक जाएगी, ओके, तो फिर हमारा तो प्रोडक्शन ठप हो जाएगा. देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस में लिख लो, सो अबाउट 1,050. डेटा, फर्नीचर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट. ये चार मैंने इसलिए गिनाए क्योंकि ये चारों एसेट है, तो मैं एक साथ में, बट नॉट टुगेदर इन द सेम लाइन, अलग अलग लाइन में, बट एक साथ में अलग अलग. ओके, इट्स अ लिटिल वियर्ड व्हेन आई से दैट, एक साथ में भी अलग अलग भी, ऐसा कैसा हो सकता है. एक साथ में मतलब मैं पोस्ट एक साथ में कर रहा हूँ, लाइक दिस. सन्डे डेटर लिखा, लीव वन लाइन. फर्नीचर लिखा, लीव वन लाइन. लीज होल्ड प्रॉपर्टी अपना ही है, अपना समझ के रखो, यू कैन यूज इट फॉर मेनी ईयर्स. एंड इन्वेस्टमेंट, ओके, सो दैट्स व्हाट आई मेंट ना, एक साथ में लिखा मैंने बट अलग अलग लिखा मैंने. सो वन लाइन फॉर डेटा, वन लाइन फॉर फर्नीचर. देन कम्स ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये P&L में आता है 3,450. एडवर्टाइजमेंट 30,000, 30,000 P&L में आता है. हिडन एडजस्टमेंट, तो हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है इसके लिए, बट राइट नाउ 30,000. ओके, सो वो 3 साल का था, तो जस्ट राइटिंग दैट फॉर यू. आपके पास जगह नहीं है तो इट्स ओके, मत लिख लेना वो, मतलब फॉर 3 years मत लिखना, एडवर्टाइजमेंट तो लिखना. देन कम्स बैड डेप्ट, ये जो फॉर्मूला है, ओके, तो उसके बी में, बी फॉर बैड डेप्ट 500. ओके, नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड, 2%, 3%, 4% डेबिट साइड. टू डिस्काउंट अलाउड 1,800. कैश इन हैंड, asset, कैश एट बैंक asset, एंड फिक्स डिपॉजिट विथ हिडन एडजस्टमेंट. तो वापस से एसेट के तरफ जाते हैं बट एक साथ में लिख लेते हैं. मैं थोड़ा इधर जगह खाली करता हूँ. पहले कैश इन हैंड, सेकेंड कैश एट बैंक, वो इस तरफ है बट
नो मेरा स्क्रीन इस तरफ है, दैट्स ऑलवेज अ लिटिल बिट ऑफ अ कंफ्यूजन. Fixed deposit, leave one line, 15,000. This completes the debit list. Now I will go to the credit list. The very first thing in that is capital, 80,000. Partners capital account, ऊपर. Okay, so उधर है. By balance brought down. Next, creditor 20,000. 500, 20,500, just above me. You have to leave first 5 lines. पहला 5 लाइन खाली. Next, interest received मतलब जेब में आ गया on fixed deposit, तो it is an income और उसका फैक्ट्री के साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो ऑफिस में लिखो बट क्रेडिट में. याद रखना ऑफिस में लिखो बट क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट में ऊपर आ रहा है. By interest received on fixed deposit, inner column 1,000, inner column. Then comes bank overdraft. वो तो बैंक का पैसा है, इट्स लाइक अ लोन. बैंक हमारी मदद करता है. बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 लोन होता है. सेल्स लास्ट का इनर कॉलम. अगर सेल्स रिटर्न नहीं आया देन विल पुट इट आउटसाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके हाँ. सो आई हैव रेड एंड सॉल्ड द ट्रायल बैलेंस. नाउ पहला एडजस्टमेंट, बट पहला छुपा हुआ एडजस्टमेंट, सीक्रेट एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट. क्या दिया है देख, बगल में देख लो. वेल क्वेश्चन दिखा देता हूँ तो आप देखोगे बगल में. सो एडवर्टाइजमेंट कितने साल का है? 3 साल का. अच्छा कितना पैसा है? 30,000. अच्छा 3 साल का 30,000 पेमेंट किया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है तुमने पे कर दिया. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ये अकाउंट्स. दिस अकाउंट्स इज नॉट फॉर 3 साल, इट इज फॉर 1 साल, ओनली 1 साल. फाइनल अकाउंट्स इज ऑलवेज फॉर 1 ईयर. एंड यू मे आस्क फिर एडवर्टाइजमेंट क्यों भरा 3 साल के लिए? ओके आपको इतना क्या प्यार आ गया कि आपको 3 साल का एडवर्टाइजमेंट देना पड़ा? वेल सिंपल मुद्दा है, व्हेन यू पे एक्स्ट्रा तो थोड़ा डिस्काउंट मिलता है. एकदम सिंपल सी बात है. व्हेन एवर यू पे एनी कंपनी, एनी ऑफिसर फॉर एनी सर्विस, ओके इंटरनेट का पेमेंट आपने एडवांस में कर लिया, या आपने केबल टीवी का पेमेंट एडवांस में कर लिया, ओके अगर आपने मोबाइल का रिचार्ज एडवांस में कर लिया, मतलब पूरे साल का, देन डिस्काउंट तो मिलता है. तो डिस्काउंट के चक्कर में लोग आगे का भी पेमेंट कर देते हैं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कितने साल का है? 3 साल का है. तो एक्स्ट्रा कितना है? 1 साल. ओके देखो भाई 1 साल ओके, 1 साल हमेशा ओके. एडवर्टाइजमेंट 3 साल का भरो, 4 साल का भरो, 5 साल का भरो, 1 साल ओके है. उसके बाद नॉट ओके, उसके बाद एक्स्ट्रा है, प्रीपेड. सो आई रिपीट, 3 साल में प्रीपेड किया है. 1 साल ओके तो फिर 2 साल प्रीपेड रहेगा. अगर 4 साल बोलते तो भी मैं बोलता 1 साल ओके है, 3 साल प्रीपेड हो जाता. आई रिपीट 1 साल 12 महीना ओके है, क्योंकि हमारा अकाउंट्स भी तो 12 महीने का होता है. उसके आगे जो गाड़ी चली गई, उसके आगे, उसको हम एक्स्ट्रा कहते हैं, दैट इज प्रीपेड. नाउ हाउ डू यू फाइंड प्रीपेड? लाइक दिस, प्लीज लुक बिहाइंड. सो वी आर डिस्कसिंग हिडन एडजस्टमेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, एंड उसका जो मतलब है कि भाई कोई भी खर्चा आप 12 महीना या 1 साल से ज़्यादा करो, 12 महीना 1 साल एक ही होता है, तो वो प्रीपेड हो जाता है. हाउ डू यू फाइंड इट? देखो उन्होंने दिया 3 इयर्स का 30,000, हमको ढूंढना नॉट फॉर 1 ईयर, नो. ओके तो फिर क्या ढूंढना है? हमको 2 साल का ढूंढना है, हमको प्रीपेड ढूंढना है. 2 साल का कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 multiplied by 30,000 divide by 3. If I am not mistaken, 20,000 is extra prepaid. 20,000 is extra prepaid, and please note this is how you find it out. Okay, बाकी those who are
मैथ स्टूडेंट्स, उनका थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा. दोज आर नॉट मैथ स्टूडेंट्स, चलेगा रे थोड़ा लेट बट कैलकुलेशन होगा और आंसर वही आएगा. 20,000. 20,000 इज प्रीपेड. तो क्या करें, एडवर्टाइजमेंट से माइनस करो. तो ऊपर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो प्रीपेड का. 20,000 आउटर कॉलम 10,000. दिस 20,000. 20,000 का आपको सेकेंड इफेक्ट देना है. किधर, एसेट साइड. कौन बोला एसेट साइड? कोई बोला नहीं. प्रीपेड हमेशा फ्यूचर में फायदा देता है. ओके, अगर वो फायदा देगा तो ऑटोमेटिकली जो फायदा की चीज़ है फ्यूचर का, उसको क्या कहते हैं, एसेट. ओके, कुछ लोग कुछ मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए, खास करके बेटियों के लिए, ओके, उनकी शादी के लिए सोना बुक करके रखते हैं. खरीदते नहीं है, वो बुक करके रखते हैं. मतलब वो जाके जो ज्वेलर होता है उसको कहते हैं कि मेरे को इतना सोना बनाने का है और मेरे को ये बुक करना है, मैं उसके लिए पैसे दूंगा. पैसे पैसे पैसे. तो उतना 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी होगा या उससे ज़्यादा, वो ज्वेलर उस दिन के प्राइस में बुक करता है. बिकॉज गोल्ड इज समथिंग जिसका प्राइस, यू विल लेटर ऑन लर्न इन इकोनॉमिक्स, ओके, दैट इट फ्लक्चुएट्स अ लॉट. डाउन डाउन डाउन, अप अप अप, लिटिल डाउन, लॉट अप होता है. सो द पेरेंट, मम्मी पापा, दे विल टेल द ज्वेलर, देखो भाई बुक करके रख दो, ताकि अगर कल भाव ऊपर जाए, मैं वो भाव नहीं दूंगी, मैं आज का प्राइस दूंगी. तो फायदा होता है ना. अगर भाव ऊपर गया, जो जनरली होता है, जनरली द प्राइस गोज अप, एटलीस्ट वो जो बढ़ गया वो बढ़े हुए इंक्रीज्ड रेट में खरीदने का जरूरत नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड डिसीजन. हाँ, तो काइंड ऑफ वही उसका फायदा हो जाता है. ओके, क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट का रेट ऊपर चला गया, हमको इंक्रीज्ड रेट देने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो लेट मी मूव ऑन विथ अ फर्स्ट एडजस्टमेंट. क्या था, क्लोजिंग स्टॉक. देयर वर टू प्राइजेस, 35,000, 40,000. जो कम वाला है, सम स्टूडेंट्स थिंक सर कॉस्ट प्राइस लेने का, हमेशा कॉस्ट प्राइस लेने का, मार्केट प्राइस नहीं लेने का. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी गलत फहमी है. जो कम वैल्यू है वो लेना. नाउ स्टूडेंट्स विल आर्ग्यू, आर्ग्यू नहीं करेंगे बट दे विल पुट अ डिफेंस, बट सर मार्केट प्राइस शुड बी मोर, कॉस्ट प्राइस शुड बी लेस. नो माय डियर, ऐसा नहीं है. व्हेन द प्रोडक्ट इज परफॉर्मिंग वेल इन द मार्केट, गुड, then the market price is more. But all of a suddenly, if the product does not perform well, वो बिकता ही नहीं है, तो कंपनी को मार्केट प्राइस कम करना पड़ता है. ओके, काफ़ी बार मोबाइल में ऐसा होता है. एक आईफोन निकला, आज वो 1,50,000, 1,50,000. But after around 9-10 months, there is another iPhone. So the previous one from 1,50,000 becomes 1 lakh. सो यू लाइक, अरे इसका तो मार्केट प्राइस इतना कम हो गया. हाँ, क्योंकि नया वाला आईफोन आ गया ना, नए फीचर्स के साथ में आ गया ना, नए सॉफ्टवेयर के साथ में आ गया, तो पुराने वाले का तो प्राइस कम हो जाएगा. नॉट जस्ट आईफोन, एंड्रॉयड के साथ भी ऐसे ही होता है. ओके, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी से जो बनाया गया है उसका प्राइस कम हो जाता है. तो मार्केट प्राइस तो बहुत कम हो सकता है. कम वाला, लेस वाला वैल्यू लो, that is 35,000 above. Whether it is market or cost price, that does not matter. First effect, a trading account, इधर आया 35,000. Second effect, future में काम आएगा. हाँ, very true, future में काम आएगा. इधर आया closing stock और इधर आया 35,000. Simple, done. Point number 2, interest on fixed deposit is 1,200, is still receivable. फिक्स डिपॉजिट किधर है, एसेट में है, इधर थोड़ा ऊपर है. उसके ऊपर ये 15,000 फिक्स डिपॉजिट. क्या मिलना है, अरे अभी तक इंटरेस्ट मिलना है, तो प्लस करूँ कि माइनस करूँ. इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ज़्यादा. मुझे इतना पता है, मुझे ज़्यादा समझना है.
मुझे इतना पता है, मुझे ज़्यादा सीखना है, इतना पता है, ज़्यादा पढ़ना है, इट इज़ ज़्यादा। ओके, वो कुछ तो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, करो ज़्यादा का इरादा, तो ऐसा ही कुछ है, इंटरेस्ट ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, ये आई थिंक थोड़ा बेटर है, मैं मूव कर लूँ सो इट्स क्लियर। ओके, वो आपको बोर्ड क्लियर है। देन आई ऐड इट, interest receivable on fixed deposit, add, and the total I will put outside, which will be 16,200. Now that is first effect. Second, this same interest is an income. यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में क्यों ऐड किया? बिकॉज अगर आप बैंक जाओगे तो आप बैंक वाले को क्या बोलोगे? 16,000 तो दो ही मेरे को, सॉरी 15,000 फिक्स डिपॉजिट मेरा दे दो, बट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है 1,200 वो भी तो दो। हाँ, सो यू विल आस्क, पहला मेरा एफडी दो, उसके बाद मेरे को उसका इंटरेस्ट दो, बट दोनों चाहिए मेरे को। हाँ, सेकेंड इफेक्ट इज दिस इज एन इनकम। तो ऑलरेडी देखो क्रेडिट साइड पे है, तो उसी में ऐड करना। सम ऑफ यू में से सर व्हाट इफ इट वाज नॉट देयर, तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं अलग से लिख देता, बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन फिक्स डिपॉजिट, बट पहले से है ना तो उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,200 एंड देन आई पुट इट आउटसाइड 2,200। सो वो समाप्त। ओके, हो गया। सो दैट्स द 2 points फॉर इंटरेस्ट। ओके, एंड दिस इज हाउ इट वाज नॉट कैलकुलेटेड, वो रेडीमेड दिया था। 1 डन, 2 डन, 3। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, सॉरी वो तो हो गया। ओके, प्रोवाइड आरडीडी, न्यू आरडीडी, डाउट है 2.5% का डाउट है डेटर पे। नाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लाइक सर वो 2.5% कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहली बात तो किस पे करते हैं? डेटर, ऊपर डेटर माइनस। क्यों माइनस किया सर? अरे डाउट है, भाग जाएगी। कितने लोग भागेंगे? देख, लोग नहीं है, 2.5% का अमाउंट भाग जाएगा, लोग लेकर भाग जाएंगे। तो 2.5% से आपको मल्टीप्लाई करना है। आप डेसिमल निकाल सकते हो 2.5 से, तो वो 25/1000 बन जाएगा, 25/1000। बट द आंसर दैट यू विल गेट इज 1075। ये ऊपर है एंड आउटर कॉलम 41,925. This is new RDD, nothing else. We have done in the past 2-3 lectures a लंबा महाभारत ऑफ एडजस्टमेंट्स, 1 2 3 4, मतलब खत्म ही नहीं होता है। ओके, बट टुडे एकदम सिंपल, जस्ट न्यू आरडीडी। डाउट है, मैंने माइनस किया। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट इन द फॉर्मूला दे, एंड वो ऐड करके बाहर 1575, 1 2 and 3, if I am not wrong ना, हो गया ना? हाँ, तो फोर्थ वेरी सिंपल, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 5%। चलो भाई फर्नीचर ढूंढो। फर्नीचर घिस गया, कोई भी एसेट घिस जाता है, यूज करते हो ना, यूज घिसता है, उसका वैल्यू कम हो गया। कितना वैल्यू कम हो गया? 5%। हाउ मच इज 5%? 1010, मतलब 1010। आउटर कॉलम 19,190। सेकेंड इफेक्ट, आपने दिमाग लगाया, मैंने भी दिमाग लगाया, आपने भी दिमाग लगाया, कोई भी घुटना तो लगाता नहीं है, एंकल तो लगाता नहीं है, कोहनी लगाता नहीं है, माइंड डेबिट साइड। इट्स अ वेरी कॉमन एंड सिंपल एडजस्टमेंट, 1010। नाउ कम्स द मेन पार्ट। क्या? पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है? गुड्स। द मोमेंट मेरे को वो वर्ड दिखता है गुड्स, दिमाग की जो बत्ती जलती है ना, ओके, वो एक ऐड आता है मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे, उसी तरह पॉइंट नंबर 5 गुड्स, दिमाग की बत्ती जला दे। एक गुड्स मतलब गोदाउन, बिकॉज वेयर एल्स डू यू कीप गुड? गोदाउन में कुछ ना कुछ हो गया, क्या चोरी हो गई, ओके, लूट मार, रायट, दंगा फसाद, क्या बाढ़ का पानी आ गया, बरसात का पानी आ गया, गटर का पानी आ गया, क्या हो गया गोदाउन में? गोदाउन में गुड्स है, कुछ तो हुआ है गोदाउन में। वेल, ऊपर कहता है डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके,
थोड़ा बैड लक ओके। 8,000 का गुड्स जल गया, तो आप क्या करोगे? वेल, जले हुए सामान का व्हाट कैन आई डू, वो मेरे कुछ काम का नहीं, वो राख ऐश हो गया होगा, तो वो तो गायब ही हो चुका है ओके। या तो आधा गायब हो चुका है, आधा बाकी है, बट किसी के काम का नहीं है, मैं तो फेंक दूंगा। यस, तो फेंक दो ओके। खुशी खुशी नहीं, बट रख के क्या करोगे ओके। मातम थोड़ी मनाओगे उसका, करोगी भी तो 1-2 दिन के लिए। सो थ्रो इट आउट, credit what goes out, throw it out. Buy goods destroyed by fire, even though it's bad news, but what do? It's life okay, things continue, business definitely continues okay. A great man once said the show must go on, so it must continue okay. These goods that were destroyed by fire, 8,000 of goods मैंने फेंक दिया, but couldn't I have done something to protect this okay? If you have a vehicle, you have a 4-wheeler, a 2-wheeler okay, and वो घर के बाहर रखा है, and someone says, या तो weather report says कि तूफान आने वाला है okay, rains, it's going to be very very windy and rainy, then what do? You take care of it, you cover it with something. You just नहीं नहीं अरे एकदम ये तो BMW की बाइक है ओके, BMW का गाड़ी है, ऑडी गाड़ी है, अरे बाबा मर्सिडीज भी रहने दे ओके। अगर नेचर गेट्स एंग्री, इट इज गोइंग टू इफेक्ट इट। हाँ, तो व्हाट डू? यू कवर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। द सेम थिंग अ बिजनेसमैन डज। व्हाट डज ही डू? ही ट्राइज टू प्रोटेक्ट विथ व्हाट? इंश्योरेंस। व्हाट इज इंश्योरेंस? इट्स अ कवर। आग लगेगी ओके, आप नहीं रोक सकते हो, यू कांट स्टॉप, यू कांट टीचर की तरह आप आग को डांट नहीं सकते, ए मिस्टर फायर ओके, उधर क्यों लग रहे हो, इधर क्यों लग रहे हो, जाओ घर पे। नो, यू कांट डू दैट। आई विश वी कुड, बट नो, it's uncontrollable okay. This is not just it's not just a shop okay. There are many countries, Australia okay, USA, where there are forest fires. एक चिंगारी ओके पूरे जंगल को खाक कर देती है, तो होल विथ द लॉस ऑफ प्रेशियस वाइल्ड लाइफ, नुकसान तो होता ही है। What can you do? You can take insurance. What does insurance do? It protects. Insurance is like a cover, umbrella. Just like when there is rain, you open the umbrella and you don't get wet. थोड़ा यहाँ वहाँ पे yes, but maximum तो बच जाते हो ना। Similarly, तो इंश्योरेंस एक मतलब एक सब्जेक्ट है, एक अलग इंडस्ट्री है, और मे बी इन फ्यूचर ना आप में से काफ़ी लोग इंश्योरेंस के सेक्टर में जाओगे ओके। डेफिनेटली पॉसिबल, बिकॉज इन इंडिया इट इज़ एन अनटैप्ड मार्केट। व्हाट डज एन अनटैप्ड मार्केट मीन? अभी तक इतना नहीं फैला है ओके। देयर आर अदर कंट्रीज जहाँ पे सारी चीज़ें इंश्योर्ड होती है, इंडिया में इतना नहीं है। बट येस, एज एंड व्हेन द नॉलेज ओके, मैनी पीपल व कोविड के कारण उनका काफ़ी नुकसान हो गया ओके। जो लोग एडमिट हो गए, हज़ारों का, लाखों का खर्चा हो गया, बट जिन्होंने इंश्योरेंस लिया था, मेडिकल इंश्योरेंस, उनका काफ़ी पैसा बच गया, बिकॉज दे हैड टेकन मेडिकल इंश्योरेंस ओके। जोर का झटका धीरे से लगा, नुकसान हुआ, बट 1-2 लाख का नुकसान नहीं हुआ। इंश्योरेंस कंपनी ने उनको कुछ क्या दिया? क्लेम। प्लीज़ याद रखना। सो आई रिपीट, यहाँ पे क्या होता है? दुकान में आग लग गया, गोदाम में आग लग गया, नुकसान भी हो गया, बट यू रिमेंबर मैंने तो इंश्योरेंस लिया है। सो आई विल गो टू द इंश्योरेंस कंपनी, आई विल फिल अ क्लेम का फॉर्म। क्लेम मतलब साडा हक, एथेरक, नॉट डिसलाइक, एथेरक। यू टेल द इंश्योरेंस कंपनी, तुमसे मैंने इंश्योरेंस लिया, आग लग गया, अब तुमने वादा किया था मेरे को क्लेम दोगे, कॉम्पेंसेशन दोगे, चलो दो। इंश्योरेंस कंपनी देगा, दिल से ये फॉर्म लो, भर के दो। सो यू विल फिल इट अप, ये दिन पे ये टाइम को आग लगा, ये जल गया, वो जल गया, ये जल गया, वो जल गया,
एंड यू विल आस्क द इंश्योरेंस कंपनी पैसे दो. सो यू विल टेल देम, देखो 8,000 का माल जल गया. इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली फुल पेमेंट नहीं करती है. आई रिपीट माई सेल्फ, इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली फुल पेमेंट नहीं करती, बट नो प्रॉब्लम, चलो कुछ तो दे दो ऊपर. इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ व्हाट 6,000. तो मैं बोले अरे चलेगा 6,000 दे दे, 8,000 के नुकसान से तो बेटर है. सो आई रिपीट, आई विल टेल द इंश्योरेंस कंपनी चलेगा, मेरे को कोई गुस्सा नहीं है, आप दे दो मेरे को, क्या आपको 6,000 देने का है दे दो, नो प्रॉब्लम. हाँ, सो द इंश्योरेंस कंपनी एंड यू ऑल विल अग्री अपॉन अ सर्टेन कॉम्पेंसेशन अमाउंट. यहाँ पे है 6,000. I will take it. Please note, I have not received it. They have accepted. इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है आपको. क्या सर थोड़ा रुको, क्या है ना सर, हमको फायर ब्रिगेड का जो रिपोर्ट होता है वो लेना पड़ेगा, हमको अब पुलिस वाले से भी रिकॉर्ड लेना पड़ेगा, तो वो सब ना सर 1-2 महीना जाएगा, उसके बाद में हम आपको क्या देगी, क्लेम देगी. फ्यूचर में 6,000 रिसीवेबल है. आई थिंक मैंने लास्ट टाइम बताया था, नहीं बताया तो वापस से मैं रिपीट करता हूँ. मुंबई के शहर में नई गाड़ी ओके पार्किंग में खड़ी थी, उसके सामने खड्डा हो गया, गाड़ी डूब गई. तो अभी वो जो ओनर है 4 months ओल्ड कार, उसको बुरा नहीं लगे, अरे बुरा नहीं, धक्का लगेगा उसको, बट थोड़ा दिलासा उसको रहेगा. व्हाट, उसने इंश्योरेंस किया था, बिकॉज इट्स नॉट हिज फॉल्ट, उसने इंश्योरेंस किया था. ही विल गो टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड ही विल टेल द इंश्योरेंस कंपनी, देखो भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गाड़ी तो सही से पार्क की थी, धरती खुल गई, निगल लिया गाड़ी को, नॉट माई फॉल्ट. बराबर है. Now if the car was maybe let's say 20 lakhs, maybe okay, the insurance company if not 20 maybe 15 लाख देगी, maybe 15 लाख देगी, चलो not bad, at least कुछ तो मिल गया. हाँ, तो बट ये इंश्योरेंस कंपनी विल से सर ऐसा नहीं कि कल के कल मिलेगा आपको, नहीं, वी विल हैव टू डू सम इन्वेस्टिगेशन, वी हैव टू फाइंड आउट कि भाई गलती किसकी थी, वो उतना बड़ा होल ओके हुआ कैसे, दे हैव टू फाइंड आउट. थोड़ा टाइम जाता है बट मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा. आपको कितना मिलेगा फ्यूचर में, 6,000. तो इफ़ यू कैन नोटिस हियर, इस तरफ पे आ रहा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6,000. आई रिपीट माई सेल्फ, 8,000 का गुड्स फेंक दिया ट्रेडिंग अकाउंट, 6,000 आने वाला है. बट 2 इफेक्ट्स आपने जो दिए हैं इज 8,000 6,000. 8,000 वो मैच नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि 2,000 गायब है. What is that 2,000? That is called as loss by fire. Actual आग के कारण आपका नुकसान थोड़ी 8,000 का हुआ है, बिकॉज आपको तो 6,000 मिलने वाला है, तो आपका नुकसान 2,000 है. तो वो 2,000 is written in the profit and loss account. Just above me on the debit side. Just a minute. Here is profit and loss account. So this is one of the unusual adjustments. Why do I mean unusual? क्योंकि इसको 3 बार लिखा है, 8,000, 6,000 and now we are writing 2,000. But please note, in account there is no 3 बार, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा नहीं होता, 2 ही होता है, डेबिट क्रेडिट. हाँ, इतना ही है कि 8,000 was in trading account क्रेडिट, एंड जो डेबिट है वो स्प्लिट हो गया, स्प्लिट टुकड़ों में, इधर 2,000 है और बैलेंस शीट में 6,000. सो प्लीज नोट, दिखता 3 बार है बट है 2 ही, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, सो दैट इज द एडजस्टमेंट नंबर 5, जो था गुड्स आग लगी और उसका इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने वाली है. कभी कभी गुड्स को आग लगता है और इंश्योरेंस कंपनी कुछ देती नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस ही नहीं कराया आपने. अभी अगर नहीं कराया देन उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग है और उसका राइटिंग एंड इफेक्ट भी थोड़ा अलग है. राइट नाउ ऑल माई एडजस्टमेंट्स आर डन, माई हिडन एडजस्टमेंट इज डन. तो परचेस जो इनर कॉलम में है वो आउट, सेल्स जो इनर कॉलम में वो आउट, एंड आई कैन स्टार्ट टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एंड देन ब्रिंग द लेक्चर टू एंड
एंड. ओके, डू कीप इन माइंड. अगेन आप पॉज कर सकते हो. यू कैन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, देन अनपॉज एंड देन यू कैन चेक सही है गलत है क्या है. ओके, सो यू कैन ऑलवेज डू दैट, ताकि क्या है थोड़ा ना कॉम्पिटिशन भी चलता रहता है. हाँ, हियर 124,500, that is the debit total. Credit is heavy, 1,63,000. 38,500 क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से उसे उठाओ, उसको अगले देश में मतलब P&L में लेके जाओ क्रेडिट साइड पे एंड लिख लो देन डेबिट टोटल. क्रेडिट इज हैवी बट डेबिट टोटल 25,885. ऑब्वियसली ना मैंने तो कर लिया ऐसे क्लिक पे. you'll take a little time but no problems, you take your time. Credit total is 40,700. The difference, which is called as net profit, 14,815. It is distributed into both the partners. In today's sum I read the full sum. If you want to, I'll show it to you. देख लो. Do you see a ratio? You don't. अगर 2 आंखें हैं तो भी नहीं दिखेगी, मेरे जैसे 4 आंखें हैं तो भी नहीं दिखेगी. देयर इज नो रेशियो. अरे अगर रेशियो नहीं दिया तो फिर हम क्या करें? हाफ हाफ रे 1:1, 1:1, 1:1, जिसमें से हाफ हाफ पैदा होता है. पीयूष को और अरुण को दे दो वरना वो झगड़ा करेगी. सो द नेट प्रॉफिट विल बी हाफ हाफ. बट बिकॉज दिस इज अ डेसिमल आंसर, क्योंकि देखो इट इज 4,815, 5 रुपया. 5 रुपया का हाफ तो आपको 0.5 आएगा ना. हाँ, सो इट इज 7,407.5. तो राउंड ऑफ, यू हैव टू डू राउंड ऑफ, क्योंकि डेसिमल्स में वी आर नॉट सपोज टू कीप दी नंबर्स. तो हाउ डू यू राउंड ऑफ? पीयूष का आंसर विल इंक्रीज बाय 1 रुपी, 7,408. बट अरुण का आंसर विल नॉट डिक्रीज, इट विल रिमेन द सेम, 7,407. आप दोनों राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप अगर करोगे तो 1 रुपया बढ़ जाएगा. जो डिजिट प्लेस है उसमें 5 के जगह पे 6 आएगा, विच इज गड़बड़, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो उतना ही हो सकता है, कम नहीं ज़्यादा नहीं. तो क्वाइट सिंपल. हमने पीयूष के लिए मैथ्स का रूल यूज़ किया राउंड ऑफ का. ओके, और अरुण के लिए हमने नहीं किया, क्योंकि किसी ना किसी को तो दोनों में से बलिदान देना ही था. ये प्रॉफिट अगली पेज पे. डेबिट में देयर इज नथिंग इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो जो टोटल है पीयूष का टोटल 87,408, वही डिफरेंस है. अरुण का टोटल 87,407, वही डिफरेंस है. व्हाट इज दिस डिफरेंस? दैट्स द कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल. किधर जाता है? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड. क्यू नहीं, बिकॉज वो ऊपर जो है ना वो डेबिट है, तो लाइबिलिटी में आके क्रेडिट बन जाता है. तो इट्स नॉट कि बस मेरी मर्जी है, बिल्कुल नहीं, अकाउंट्स की मर्जी है. द टोटल ऑफ बोथ द कैपिटल्स is 174,815. Very quickly, there are going to be many professors in many colleges, and they are correct. They will not do partners capital account. Partners capital account में जो है वो उसको liability में बताएगी. ओके, तो आई रिपीट, वो लिखेगी कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, अगर वो आता है तो. वो मैं नहीं करता, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा देता हूँ. रीज़न बीइंग, इन फ्यूचर जब ये चैप्टर आप करो होगा, ये चैप्टर आप में से काफ़ी लोगों को फ्यूचर के कॉलेजेस में आपके कोर्सेज में होगा, तो आपको पार्टनर्स अकाउंट में दे विल टीच पार्टनर्स कैपिटल, तभी ये काम आएगा. अब तो काम आएगा, ये गलत नहीं है करना. ओके, बट अभी तो प्रेजेंटेशन ऑल्सो बिकम्स गुड, अदरवाइज लाइबिलिटी में बहुत गड़बड़ खिचपिच हो जाती है. ओके, एकदम विरार लोकल लगता है. एट द एंड the total of both the sides, that is the liability side, 2,05,315, and the asset side. Okay, इस तरफ उस तरफ should come the same.
2,05,315. That's the solution. I hope whatever was not the difficult part but the new part, एडवर्टाइजमेंट का हिडन एडजस्टमेंट किस तरह आपको कैलकुलेट करना था, जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है उसको किस तरह हैंडल करना था, जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है उसको किस तरह करना था. इफ ऑल ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन वाज अंडरस्टूड टू यू एंड यू आर जनरली हैप्पी with the lecture, please do like the lecture. It is a good way, okay, it gives us also positive vibes अगर आप like करते हो. हाँ, मैनी में से बट सर मेरे को वो नहीं समझा, ये नहीं समझा, तो मैं डिसलाइक करता हूँ. देखो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, बिकॉज लाइक करोगे झूठ मूठ का तो हम चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे. व्हेन यू डिसलाइक, एटलीस्ट इन द कमेंट बॉक्स गिव द रीज़न, and then that reason can be a reason for our improvement. okay, अब उतना आप तो डेफिनेटली कर ही सकते हो. कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल, यूटिलाइजेशन you can also do for posting your comments related to the question, ये वाला trading account, profit and loss account. If there is something that is not understood, don't hesitate, because when there is a question only then there is an answer. okay, मतलब I may wonder कि मैं क्या जवाब दूँ, आप सामने से सवाल तो करो तो ही तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल आपका, जवाब मेरा, बट वो एक सवाल आपका होता है, जवाब सभी के लिए होता है. दैट आंसर इज यूजफुल फॉर मैनी स्टूडेंट्स. सो प्लीज़ हिचकिचाना मत, ओके, हेजिटेट मत करना. कमेंट बॉक्स में आपका आप डेफिनेटली जो डाउट है, शंका, वो आप लिख के दे सकते हो. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. चलो भाई, हमारी पोजीशन चेंज हो चुकी है. हम आपको अगली बार यही लेक्चर के कंटिन्यूएशन में मिलेंगे. बाकी जानकारी आपको टेलीग्राम के ऐप के द्वारा लेक्चर्स के बारे में हमेशा अपडेट वहाँ पे किया जाएगा. डू शेयर द वीडियोज़ विद एवरीबडी दैट यू कैन. वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू टीच in a unique manner, in a manner which is digestible to you. आप हजम उसको कर सको एंड आपको समझ में आए, और ये जो सब्जेक्ट है आपको पसंद ही नहीं, सब्जेक्ट के साथ प्यार हो जाए. दैट्स दी थिंकिंग बिहाइंड आर थिंकिंग. ओके, सो अपना ख्याल रखना. सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लीजिए. जल्दी मिलेंगे. दिन आपका अच्छा जाए. आई होप you have a wonderful day ahead. Take care of yourself, take care of your seniors and juniors, of your lovely family members. Have a wonderful day. God bless each and everyone. Till the next time we meet. Bye.